اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کو معاملہ واپس بھیجتے ہوئے دوبارہ فیصلے کی ہدایت شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری نے تبدیلی کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کو معاملہ واپس بھیجتے ہوئے دوبارہ فیصلے کی ہدایت شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری نے ٹریبونل تبدیلی کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کو معاملہ واپس بھیجتے ہوئے دوبارہ فیصلے کی ہدایت شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری نے ٹریبونل تبدیلی کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ اس پر تفصیلات جانتے ہیں فیاض محمود سے۔ جی فیاض، بتائیے گا۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنا دیا ہے جس میں عدالت نے الیکشن کمیشن کا الیکشن ٹریبونل کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار دے دیا ہے، لیکن عدالت نے یہ معاملہ ایک بار پھر واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے، جس میں عدالت نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بار پھر اس معاملے کو سن کر دوبارہ فیصلہ ابھی کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد سے الیکشن لڑنے والے تینوں امیدواروں کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، جس میں الیکشن کمیشن نے ان کی جگہ پر شکور پراچا کو تعینات کر دیا تھا، اور اس کے بعد عدالت نے جو الیکشن ٹریبونل کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ہٹانے کے خلاف اس درخواستوں پر سماعت کی تھی۔ سماعت کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو آج عدالت کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اب ایک بار پھر معاملہ واپس الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن اس معاملے کو دوبارہ سننے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ طے کرے گی آیا کہ الیکشن ٹریبونل جسٹس طارق محمود جہانگیری پر ہی مشتمل ہوگا یا پھر کسی نئے جج کو تعینات کیا جائے گا۔ جی صحیح، فیاض محمود، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں گے اہم خبر۔ اسرائیل کی الیکٹرانک دہشت گردی جاری۔ لبنان میں دوسرا بڑا سائبر حملہ، پیجر کے بعد واکی ٹاکی ڈیوائسز بھی دھماکے سے اڑا دیں۔ خوفناک دھماکوں میں شہید افراد کی تعداد 20 ہو گئی، 450 سے زائد زخمی۔ دھماکوں کے بعد متعدد عمارتوں، دکانوں اور گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایک دھماکہ پیجر حملے میں شہید حزب اللہ اراکین کی نماز جنازہ کے قریب ہوا۔ لبنان کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ روز پیجر دھماکوں میں 2 بچوں سمیت 19 افراد شہید ہوئے۔ لبنانی وزیر خارجہ نے دھماکوں کو کھلی جنگ قرار دے دیا۔ اسرائیلی آرمی چیف کی نئی دھمکی، کہا ہمارے پاس حزب اللہ کے خلاف ایسی بہت سی صلاحیتیں ہیں جو اب تک استعمال نہیں کی گئیں۔ لبنان میں سائبر حملے تشویشناک ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ، کہا پاکستان لبنان میں ہونے والے حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کی مہم جوئی علاقے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ Pakistan strongly condemns this week's attacks in Lebanon carried through detonation of electronic equipments. Use of cyber and electronic means to commit terrorism in foreign countries is reprehensible. We condemn terrorism in all forms and manifestations and offer our deepest condolences to the families of the victims and the people and government of the Republic of Lebanon. These terror attacks are a manifestation of Israel's alarming adventurism in the region, which has endangered regional peace and security. Pakistan reaffirms its support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity and calls upon the international community to take urgent steps to hold Israel to account on its acts of international terrorism and violations of international law. آگے بڑھیں گے اہم خبر۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ فیصلے کے مطابق نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق مجسٹریٹ کے لیے 3 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم۔ سیشن کورٹ کو 5، ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل پالیسی مینڈیٹ کے مطابق ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔
स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ैन कुरैशी की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। ये कब का वाक़या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। वकील तैमूर मलिक ने बताया कि 9 सितंबर को अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया, जवाब तलब कर लिया। अदालत ने वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी कौमी असम्बली से भी जवाब तलब कर लिया। अदालत की 10 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ैन कुरैशी की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म भी दे दिया। मजीद बताएंगे लाहौर से नदीम चौधरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर शहर की तज़ीन व आराइश के लिए PHA बनाने का ऐलान। पंजाब भर में रिवायती मेले बहाल करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने पाकपतन में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। हड़प्पा में आसार कदीमा की हिफाजत और सयाहों की सहूलत के लिए प्लानिंग का जायजा लिया। मरियम नवाज ने हर शहर में इंतजामिया को मकामी मेलों की हौसला अफजाई, हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने, साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत दी। उन्होंने बाबा फरीद गंज शकर के मज़ार की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने और साहिवाल और उकाड़ा में मॉडल एग्री मॉल बनाने की हिदायत भी दी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में पहली मरतबा प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं। किसान कार्ड के लिए 9 लाख दरखास्तें आईं, चंद दिनों में कार्ड एक्टिव होगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड में प्राइवेट अस्पताल और सर्जन शामिल किए हैं। हिम्मत कार्ड पर हर 4 माह बाद 15,000 रुपए मिलेंगे। बेवाओं और गरीब अकलियती भाइयों के लिए माइनॉरिटी कार्ड भी इशू करेंगे। हर शहर में सड़कों की हालत चंद माह में बदल जाएगी। अरकान असम्बली ने साहिवाल डिवीजन की सड़कें बनाने पर वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। साबिक सदर आरिफ अलवी का जमात इस्लामी की क़यादत से रब्ता। आरिफ अलवी आज मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से दोपहर 3 बजे मुलाकात करेंगे। तर्जमान जमात इस्लामी के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी का जमात इस्लामी की क़यादत से रब्ता। आरिफ अलवी आज मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से दोपहर 3 बजे मुलाकात करेंगे। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंडेक्स 81,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 81,970 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। उधर अमरीकी करेंसी का रिवर्स गियर बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे मज़ीद सस्ता। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह इंडेक्स 81,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 81,970 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। उधर अमरीकी करेंसी का रिवर्स गियर बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे मज़ीद सस्ता। स्पेशल बच्चों की बुनियादी सेहत की देखभाल, HIV और हेपेटाइटिस से बचाव से मुतालिक स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान और हिलाल अहमर पाकिस्तान सिंध के दरमियान 3 साला मुद्दत के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। कराची में पाकिस्तान रेड क्रिसेंट हेड ऑफिस क्लिफ्टन में होने वाली मुफाहमती याददाश्त पर स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक इकबाल लाखानी और हिलाल अहमर की चेयरपर्सन फरजाना नाइक ने दस्तखत किए। चेयरपर्सन हिलाल अहमर फरजाना नाइक का कहना था, स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के साथ शिराकत हमारे लिए बाइसे एजाज है। चेयरपर्सन SOP रौनक लाखानी ने कहा, रेड क्रिसेंट की जानिब से इंसानी खिदमत के पेश नज़र स्पेशल खिलाड़ियों की सरपरस्ती के लिए आगे आना एक खुश आइंद अमल है। हम सेहतमंद कम्युनिटी की तामीर और इवेंट्स के कामयाब इनेकाद के लिए हिलाल अहमर से खिलाड़ियों का डेटा शेयर करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की वजाहत को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ आरा बलोच का कहना है, हफीज़ मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के वीज़े पर मौजूद है। पाकिस्तान में सिफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेहरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली पर भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की वजाहत को मुस्तरद कर दिया।
तर्जमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है हफीज़ मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के वीज़े पर मौजूद है, पाकिस्तान में सिफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली पर भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के इसराइल से किसी भी सतह पर सिफारती राब्ते नहीं हैं। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने तक इसराइल के साथ किसी भी तरह का ताल्लुक कायम करने से इनकार किया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जिनका किसी भी सतह पर इसराइल से कोई राब्ता नहीं है। गुज़श्ता रात खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हाफिज़हुल्लाह का जो खिताब है वो सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने मजलिस शूरा से किया है। ये सालाना खिताब कहलाता है और उसमें वाज़ेह दो टोक अंदाज में दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि इसराइल से ताल्लुकात उसी सूरत कायम हो सकते हैं जब एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो और इसराइल फ़लस्तीनियों के हकूक़ को तस्लीम करे। वेलकम बैक। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम और पाकिस्तान नुमाइंदा वकला मीटिंग सुप्रीम कोर्ट बार कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुनाक़िद की गई। इजलास की सदारत शहजाद शौकत सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने की। एलामिया के मुताबिक नुमाइंदा इजलास पार्लियामान की हर किस्म की कानून साजी बशमूल आइनी तरामीम करने का इख्तियार तस्लीम करता है। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी जहांज़ेब अब्बासी, बताइएगा इस बारे में। देखें, गुज़िश्ता रोज सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत की ज़ेर सदारत आल पाकिस्तान नुमाइंदा इजलास बुलाया गया और इसका अब एलामिया जारी किया गया है, जिसमें न सिर्फ पार्लियामान की आइनी तरमीम के इख्तियार को तस्लीम किया गया है बल्कि उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस मामले को मद्देनजर रखा जाए कि आइनी तरमीम का बुनियादी इंसानी ढांचे से मुतसादिम ना हो। इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिलखसूस बार एसोसिएशन और बार कौंसिल, उनको इस पूरे प्रोसेस में इस मामले के ऊपर जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए। और फिर उसके साथ साथ इस एलामिया में ये भी कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाती है जो इन तमाम अमूर का जायजा लेगी और फिर उसके बाद इस मुजवजा आइनी जो तरमीम है इस मामले के ऊपर ये कहा गया है कि इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चला जाए। और उसके साथ साथ इस मामले के ऊपर जो एलामिया जारी किया गया है इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये भी कहना है कि वकला की जो हड़ताल है इसके लिए सिर्फ जो मुंतखब बॉडीज हैं वही इसका ऐलान कर सकती हैं। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है, बिलखसूस जब गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बाकायदा इस इजलास में शरीक हुए और उन्होंने इस मुजवजा आइनी तरमीम के जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे शुरका के सामने रखे। इस पे वकला की जानिब से कुछ क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी हुई और फिर उसके बाद ये एलामिया जो है वो अब जारी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी। पंजाब हुकूमत ने एमडी कैट टेस्ट के लिए दफ़ा 144 लगा दी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब के 12 शहरों में 22 सितंबर को दाखिला टेस्ट के लिए दफ़ा 144 लागू होगी। उम्मीदवारों और सुपरवाइजरी अमले के अलावा कोई शख्स इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल नहीं हो सकेगा। इम्तिहानी मराकज़ और इर्द गिर्द हर किस्म का हथियार, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डायरी, किताबें और गाइड्स ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इम्तिहानी मराकज़ और इर्द गिर्द किसी किस्म के एहतजाज या मुजाहरे की इजाज़त भी नहीं होगी। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।